أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مدرك الحاربين والمنافقين باعث الأنبياء والمرسلين خالق من في السماوات والأرضين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب الأنام وحامل وحي الكلام سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و محمد کے لیے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. 1445 ہجری کی آج 9 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل اس عشرے کی نبی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. علی کی کہانی ذوالفقار کی زمانے کے موضوع پر مسائل کا ماحول تھا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ شب عاشور گریبان چاک ہوتا ہے. شب عاشور سلام نہیں کیا جاتا ہے. صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے یا حسین. مگر ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے سینئر سے اپنے گھر والوں سے یہی سیکھا ہے کہ فضائل پھر بھی علی کے پڑھے جاتے ہیں. شب عاشور جب لگ جاتی ہے تب آپ مسائل میں آتے ہیں. شب عاشور میں وقت ہے تو یہ میں یاد دلاتا چلوں. اور میں نے اب تک 9 دن 8 دن میں نے اب تک یہ جملہ نہیں کہا حسین آباد میں. اور یقین جانیے حسین آباد میں یہ جملہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. مگر میں پھر بھی یاد دلاتا چلوں کہ ذکر علی میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں, میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ذکر علی میں سر ہلانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے. کیونکہ رسول غدیر میں سر نہیں ہو رہا تھے بلکہ ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے. تو ہم روز اپنا ذکر اسی طرح شروع کرتے ہیں کہ ذکر اول العابدین. حضرت الظاہرین آپ یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے تاکہ آپ کو پورا اشرا سمجھ میں آئے. ذکر اول العابدین حضرت الزاہدین امیر المومنین امام المتقین نصر الشرف عین ہدف شاہ مشرقین دلوں کے چین فاتح بدر حنین مولود کعبہ ولی خدا عین اللہ نور اللہ لسان اللہ سر اللہ باب اللہ عبداللہ اسد اللہ الغالب آیت اللہ العظمی علی ابن ابی طالب سے آپ حضرات ابھی سماعت فرما رہے ہیں. جو آیت میں آپ کے ساتھ روز 8 دن میں نے پڑھی ہے وہ آیت تھی انا ارسلنا الیکم رسولا. ہم نے تم سب پہ ایک رسول بھیجا ہے گواہ بنا کے. مگر آج جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور نعمتیں تمام ہوئی ہیں علی کی ولایت پر. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ کو کافروں سے خطرہ نہیں ہے. سوال یہ ہے پروردگار ابھی تو سب تازہ حاجی ہیں, ابھی تو سب کے سر مندے ہوئے ہیں, ابھی تو سب کے سر مندے ہوئے ہیں. یہ کون سے کافر ہیں کہ جن سے رسول کو پہلے خطرہ تھا؟ تو یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ جو ولایت علی میں جھول کرے اسی کو کافر کہتے ہیں. جو
जो विलायत अली में झोल करे उसे ही काफिर कहा जाता है। हदीस पढ़ी थी, दोहरा देता हूँ जो नए चेहरे हैं। किताब का नाम है मनाक़िब खारज़मी। रसूल ने कहा अली एक खुला हुआ दरवाजा है, जो यहाँ से दाखिल हो गया, जो इसमें दाखिल हो गया वो मोमिन हो गया, जो इससे बाहर निकल गया वो काफिर हो गया, जो इससे बाहर निकल गया वो काफिर हो गया। सवाल यह है कि अली को सिर्फ मदीने या मक्का या कूफे का हाकिम थोड़ी बनाया था, अली को तो आलमीन का हाकिम बनाया था। हर मुल्क जहाँ है वहाँ सरहद में बढ़ जाता है, पासपोर्ट वीजे में बढ़ जाता है, ये हमारा मुल्क है, वो कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं हमारा मुल्क है। हर मुल्क अपना मुल्क बनाया हुआ है। अली को उस मुल्क में ना बनाया था खलीफा के जिस मुल्क में पासपोर्ट और वीजे के जरिए अली महदूद हो जाए, अली को आलमीन का मौला बनाया था। अली को आलमीन का मौला बनाया था। मैंने यहाँ 20 रमजान को इसी साल मैंने रिवायत पढ़ी थी कि सलमान ने पूछा मौला ये बताइए कि सुलेमान के पास तो बहुत बड़ी हुकूमत थी, आपके पास इतनी बड़ी हुकूमत है, मुझे वो रिवायत नहीं पढ़नी, उससे जैसी एक रिवायत पढ़नी और हवाले का जिम्मेदार हूँ। हाशिम बहरानी अपनी किताब में लिखते हैं, रिवायत मैंने ये पढ़ी थी वो ये थी कि सलमान ने कहा या अली आप जो है वो हमें अपनी सल्तनत दिखा सकते हैं। अली ने इशारा किया, बादल आया। जैसे ही बादल आया अली ने बादल पर अपने तमाम औलाद को सवार किया, सलमान को सवार किया और दूसरे बादल पर खुद सवार हुए। अब सलमान कहते हैं जैसे ही हम बादल पर बैठे अली ने कहा अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही मैंने आंखें बंद की अली ने कहा अपनी आंखें खोलो। जैसे ही मैंने आंखें खोली मुल्क दूसरा था, शहर दूसरा था, लोग दूसरे थे। आपके जहनों में है कि अली आलमीन के मौला है। देखिए परेशानी वाली बात नहीं है। एक फारसी शायर है वो कहता है आले मोहम्मद का कयास अंबिया से न कीजिए। आप थक गए हैं, आले मोहम्मद का कयास अंबिया से न कीजिए। क्यों? इनके घर के सलमान को छोटा कर दो तो वो सुलेमान नबी बन जाता है। इनके घर के सलमान को छोटा कर दो तो वो सुलेमान नबी बन जाता है। तो अली सिर्फ जमीन के बादशाह नहीं है, अली सिर्फ आसमानों के बादशाह नहीं है। अली जहाँ तक अल्लाह रब है, जहाँ तक अल्लाह अल्लाह है वहाँ तक अली बादशाह है। कहते हैं एक मुनाफिक ने कहा, और किताब का नाम मैंने आपको बता दिया, हवाले का जिम्मेदार हूँ। 1600 दिनार देने हैं, रसूल के पास आए। जैसे ही रसूल के पास आए और रसूल ने कहा कि भाई आ रहे हैं, उसको 1600 दिनार दे दो। सन्नाटा, तो अपनी जानी जितना सन्नाटा भी है उससे कई ज्यादा वहां था। आप की सन्नाटे मारे, आप मेरा साथ दे। सन्नाटा तो वहां होगा ना, आलम इस्लाम के कुछ सन्नाटे ऐसे हैं अगर अली ना होते तो वो सन्नाटे भी रह जाते। अगर अली ना होते तो वो सन्नाटे ही रह जाते। मैं अर्ज कर चुका हूँ पिछले बार यही कि कुछ सन्नाटे ऐसे हैं जो सिर्फ अली ने तोड़े हैं। अगर अली ना होते तो वो सन्नाटे सन्नाटे ही रह जाते। रसूल ने कहा एक काम करो 160 करके सबको दे दो। ऐसा ही सन्नाटा। फिर कहा अरे 16 करके दे दो, 6 करके दे दो, 1 करके दे दो। फिर सन्नाटा। अली ने जेब से हाथ निकाला, कहिए 4800 दिनार। जो मांग के मुताबिक दो उसे सही कहते हैं, जो मांग से ज्यादा दो उसे करीम कहते हैं। बहुत आसानी सुन रहे हैं। कहते हैं जैसे ही अली ने 4800 दिनार दिए, अब उसने कहा मुनाफिक ने, जो मुनाफिक शिकायत किया करते थे या रसूल अल्लाह आज भी हमें अली का हुक्म अच्छा नहीं लगा, ये भाई मुनाफिक है, कह रहे हैं अभी गदीर में मौला बने हैं, सर भी मुंडे हुए ना, भी जो सर जो मुंडे हाजी है ना, ताजा ताजा हाजी है, सर मुंडे हुए हैं। जब सर मुंडे हुए होते दिमाग बड़ा तेज चलता है। आसानी से सुन रहे हैं, सर मुंडे में है, दिमाग बड़ा तेज चला। का अभी मौला बनाया है, पता नहीं इसकी चेक करेंगे अभी कहाँ जाते हैं। कहा ठीक है। रात का वक्त आया, अली चले। उन्होंने कहा आप यहाँ छुप जाए, आप यहाँ छुप जाए। खैबर औहद की लड़ाई में जुमला याद है, रसूल ने क्या कहा था, तुम यहाँ खड़े हो जाना, तुम यहाँ खड़े हो जाना, और तुम्हारी रफ्तार जरा बहुत तेज है, तुम वही खड़े रहना। उन्होंने कहा आपकी रफ्तार बहुत तेज है, आप यही खड़े रहना। अली चलते हुए आए, जैसे अली आए अली ने आवाज दी मुनाफिकीन को, मेरी जासूसी कर रहे हो? कहा नहीं मौला हम कहाँ जासूसी कर रहे हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, अभी तो आप मौला बने हैं। अली सिर्फ दुनिया के मौला नहीं है, अली आलमीन के मौला है। मुझे अपने अशरे तक मुकम्मल करना है कि अली कहाँ तक के मौला है। कहते जैसे ही हुआ, कहा मौला हम तो देखना चाहते थे आप कहाँ जाते हैं। अली ने कहा सोच ले, फैसला कर ले, जहाँ मैं जाना है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू जाएगा? कहा जी मौला जाऊंगा। कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की, का 2 कदम आगे चल। जैसे 2 कदम आगे चला, वही हुआ, मुल्क दूसरा था, शहर दूसरा था,
लोग दूसरे थे, वहाँ बीबियां कहाँ फंसा दिया। तो ऐसे खंडर में कहा था सलमान ने खंडर खुलवा दो, कहाँ फंसा दिया। अब तो भाग भी नहीं सकते हैं, यहाँ से भी नहीं भाग सकते हैं। जैसे ही गए, कल ये बताओ मदीना कितनी दूर है? उसने सर पकड़ दिया, अरे नहीं आए हो, मदीने का जिक्र क्यों करते हो, मदीने का जिक्र क्यों करते हो? वहाँ तो बड़े अजीब गरीब लोग रहते हैं, वहाँ के लोग जो है वो अली पे चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं। वहाँ के लोग अली पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। जैसे ये जुमला सुना, उसे कहा ये है का ये शहर कौन सा है? कहा ये कोई काफ की तरफ लगता है। कहा मदीने का फासला कितना है? कहा 70,000 साल। अली वहाँ के बादशाह नहीं है, अली आलमीन के बादशाह है। कहा 70,000 साल का फासला है। जैसे ही ये जुमला कहा, अब देखिए जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो बुजुर्ग हैं, मुझसे लेकर जाते हैं कि जब फसल उगाई जाती है तो बारह डाला जाता है, पानी डाला जाता है, मट्टी 3 से 6 महीने लगते हैं, कम से कम 6 महीने, कम से कम 8 महीने तो लगते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ किसी ने फसल उगाई, बीज डाला, मट्टी बंद की, पानी डाला, फसल जवान हो गई। थक के नहीं सुनेगा, फसल जवान हो गए, फसल काटी गोदाम पे रुका दी। वो कह रहा है ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, यहाँ फसल सिर्फ बीज डाला है और फसल जो है वो जवान हो रही है। अब उन्होंने कहा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम तो फंस गए, अली ने फंसा दिया है हमें, अब तो अली ने फंसा दिया है। आप क्या करें? क्या उससे पूछा भाई ये मैं भी ये काम शुरू कर देता हूँ। कहा ठीक है आप भी काम शुरू कीजिए। जैसे ही काम शुरू किया, कहते हैं काम शुरू करने के बाद उसने पानी डाला, कवाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रिवायत खत्म हो रही है, मैं आपको अपना शेर करके बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। करे तुम्हें एक बात बताना भूल गए। कहा कौन सी बात? कहा हमारा कोई भी काम जब तक नहीं होता, और अगर हम किसी मुश्किल में हो, हमारा काम जब तक नहीं होता जब तक कि हम या ही मदद ना करेंगे। इस नारे मेरी सही से नारा लगाइए मुझे वो भाई अली हक 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 सबसे बड़ा महान जुमला वो ये है कि जैसे उसने कहा या अब किस दिल से कहा होगा या अली मदद, मुनाफिकों को भी या अली मदद कहना पड़ गया, मुनाफिकों को भी या अली मदद कहना पड़ गया। जैसे ही बीज बोया, पानी डाला, का भाई अब भी नहीं होगा जुमला आप क्या वाले, उसने पुकार के कहा कैसे होगा? मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कौन सी बात? कि हमारा कोई भी काम जब तक नहीं होता है कि जब तक हम या अली मदद ना करें, और हमारा कोई भी काम जब तक नहीं होता है कि जब तक हम एक जुमला अदा ना करने का। कौन सा जुमला? का बर दुश्मन मुर्तजा आना। तो अली से यहाँ के हाकिम नहीं है, अली वहाँ के भी हाकिम है। अल्लाह ने ऐलान करवा दिया खिलाफत में, अल्लाह ने ये चाहा कि क्योंकि मैं एक वाहिद हूँ, इसी तरह मोहम्मद को भी एक बनाया। अब अल्लाह ये चाहता है कि अली भी एक ही बने। अब नबी के बाद जो इमाम आएगा, जो बनी आएगा, वो एक ही इमाम हो, कोई और इमाम ना हो। शरीफा में खलीफा तो बन गया मगर मौलाना बना सके, शरीफा में खलीफा तो बना लिया मगर मौला ना बना सके। जब गदीर में रसूल ने अली को मौला कहा तो दुनिया का कोई हाकिम फिर मौला ना बन सका, दुनिया का कोई हाकिम फिर मौला ना बन सका। देखिए मुशैरी आया, उसने अली को खुदा कहा, अली ने उसे कत्ल कर दिया। और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कैसे कत्ल किया। आया अली ने समझाया, देखो मैं खुदा नहीं हूँ, कमौला आप ही खुदा। कत्ल कर दिया अली ने। जैसे ही कत्ल किया, कत्ल करने के बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, कहा मौला आप समझाना चाहिए था, हुज्जत पूरी करते। कहा मैं तो हुज्जत पूरी ना कर सका, तुम कर लो हुज्जत पूरी। क्या करा लेकर आओ। अली ने ठोकर से जिंदा किया, वही जो अली कहते थे मेरे दिल से उठ जा। अब जब वो उठा तो उसने कहा मौला अब तो यकीन हो गया, आप ही मारते हैं, आप ही जलाते हैं, आप ही मारते हैं, आप ही जलाते हैं। तो सवाल ये है कि जरूरी था मुशैरी का आना। अगर मुशैरी ना आता और अली उसे कत्ल ना करते तो दुनिया में हर कोई अल्लाह बन जाता, जिस तरह नमरूद फिरौन और शद्दाद बने थे। अली ने अपने बाद न किसी बंदे को नबी बनने दिया, न किसी बंदे को अल्लाह बनने दिया। अली ने कहा कोई नबी बनेगा तो मैं हूँ और ये मेरी जुल्फ़कार है। अब दुनिया मेरे शहर में आगे पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, कोई नाराज ना हो जाए। अली पहाड़ बन के खड़े हो गए और अली ने कहा कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं बनेगा।
किसी को नबी नहीं बनने दूंगा, ना जाने आप कैसे सुनेंगे। जुमला मेरे यहाँ आया हुआ है, कहो कि ना कहो, कहो कि ना कहो। अल्लाह ने अली ने जुल्फ़िकार हाथ में थाम के बता दिया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं बनेगा, मेरे बाद कोई अल्लाह नहीं बनेगा, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं बन सकता, हाँ नबी के बाद अल्लाह जरूर बन सकता है। बोलो आपने आसानी से सुन लिया, मैंने जुमला आसानी से कह दिया। मुशहरियों ने अली को अल्लाह कहा, अली ने जुल्फ़िकार उठाई और पुकार लिखा कि मैं किसी को भी अल्लाह नहीं बनने दूंगा, मैं किसी को भी नबी नहीं बनने दूंगा। तो अब बने क्या, अब सब वली बने। सवाल ये है कि रसूल ने, अल्लाह ने ऐलान करवा दिया, अब जो ऐलान करवाया अल्लाह ने और अली मौला बन गए। देखिए कहा जाता है फला बादशाह का इंतकाल हो गया, उसका बेटा तख्त पे बैठ गया, मौला बैठे थोड़ी, रसूल तो ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी अली को मौला बनाया है, ऑन ड्यूटी अली को मौला बनाया है। मतलब रसूल अली हो गए। अब जो दावत जुला शीरा में वादा हुआ था, वो आपके जो है ना अशरा खत्म होने जाना है। दावत जुला शीरा में जो वादा हुआ था, वो वादा क्या था, क्या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, जब तक कि आप इस दुनिया से ना चले जाए मैं आपकी मदद करता रहूंगा, और आपके जाने के बाद भी मैं आपका ही काम करता रहूंगा, एक पत्थर भी मैं आपको खाने नहीं दूंगा। ये रसूल से वादा किया अली ने। अली ने जो रसूल ने जो वादा किया कि आज जिसने मेरी मदद की मैं उसे अपना खलीफा, अपना जानशीन बनाऊंगा, वो वादा रसूल ने खतीब में पूरा किया। सवाल ये है कि अब रसूल हो गए बीमार। पहले बचपन में क्या होता था, बचपन में होता था कि रसूल अली को अपनी आगोश में लेकर आए 16 रजब को, जैसी आगोश में आए तभी तो हम कहते हैं मुनाफा से मानते हैं कि जैसी दुनिया में आए पहला चेहरा देखा रसूल का। अब रसूल जो है वो अली को नहला रहे हैं, अली के बाल बना रहे हैं, अली का चेहरा साफ कर रहे हैं, अली अगर खेल रहे हैं तो अली को संभाल रहे हैं, अली को निवाले बना बना के खिला रहे हैं। तभी हम कहते हैं फासला नहीं था। अब अगर देखिए अब बड़ी आसानी से मैं जुमला कह दूंगा कि फासला कैसे होगा। आते ही खाने काबा से उनको अपनी गोद में ले लिया, उसके बाद बस अली भी अली थे। रसूल ने कहा मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे महबूब को बुलाओ। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने हज़रत अबू बकर को बुलाया। अब आपने रिवायत सुनी नहीं, आपने रिवायत देखी है। अरे मेरे महबूब को बुलाओ, आप आसानी में देखा है, अरे मेरे महबूब को बुलाओ। रसूल का चेहरा बन गया किसी और का चेहरा देखने में, क्योंकि रसूल से वली का चेहरा देखना चाहते हैं। अब कहते हैं कि रसूल बीमार हुए, अब जो काम रसूल अली के साथ किया करते थे अब वही काम अली कर रहे हैं रसूल के साथ। रसूल बीमार है, निवाले बना बना के खिला रहे हैं, रुमाल से चेहरा साफ कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। दुनिया में कोई ये काम ना कर सका सिवाय अली के। अब रसूल जो है वो दुनिया से चले गए, रसूल के जनाजे पर ही खड़े हुए हैं। ये आ रहा है अशरे का निचोड़ आपके हवाले, आपके ज़हनों में पूरा अशरा है कि हमने बद्र से ओहद तक, ओहद से खंदक, खंदक से खैबर तक पूरा पड़ा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए, कहा मौला जल्दी से बैत कर लीजिए, बैत कर लीजिए। वह हंगामा हो गया सकीफा में। कहा मुझे मालूम था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कैसे मालूम था? कल ये बता गए थे। अब ये तो पूछने से रहे कि इनको किसने बताया, ये तो पूछने से रहे कि इनको किसने बताया। कहा मौला जल्दी जल्दी बैत कर ले, ताकि हम ये कहेंगे कि बस अभी की बैत हो गई, अब हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। कहा चाचा जो गजीर में बैत हुई थी वो आप लग गए हैं, कहा गजीर में जो बैत हुई थी वो आखिरी जुमला बढ़ाएगा, गजीर में जो बैत हुई थी वो करी मौला हम जल्दी जल्दी से बैत कर लें। सलमान ने और बाकी असाब ने पूछा मौला जब आप एक वक्त में 40 जगह पर हो सकते हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल था? आप हाथ आगे बढ़ाते, हम बैत कर लेते। अब अली का जवाब देखिए कि अली का जवाब है जो ये सवाल होता है कि बाद नबी अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली। मैं आपको अशरे का निचोड़ देने जा रहा हूँ, अली की कहानी जुल्फ़िकार की ज़बानी। जैसे भी कहा अली ने कहा सुनो, आलम इस्लाम में कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो नियत के बगैर किया हो, हर काम में नियत है। देखिए अल्लाह पहले मोहब्बत मनवाता है, कहता है मोहब्बत दिखाओ, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे मोहब्बत नहीं होगी। ऐसे क्या हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए आप मोहब्बत, रोजा रखिए, भूखे रहिए 30 दिन तो मोहब्बत का सिला मिलेगा। तो जाहिर होगा कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अभी जुमला ज़हन में आया, यकीन जानिए आप मोहब्बत करते हैं अल्लाह से तो आपको सिला मिलेगा। साबित होगा कि आप 30 दिन भूखे हैं, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कह रहा है लाखों रुपए खर्च करो, हज पे आओ मेरी ज़ियारत के लिए, ये पैसे दबा देना बैठो, ये
पैसे खर्च करो मेरे लिए, मेरी ज़ियारत करने आओ, बल्कि नहीं मेरी ज़ियारत करने आओ, मेरी ज़ियारत करने मेरे अली के घर पे ही ज़ियारत करना है, मेरे अली के घर पे ही ज़ियारत करने आओ। तो देखिए आप जब तक आप सबूत ना देंगे मोहब्बत का, साबित नहीं होगा कि आपको कितनी मोहब्बत है। ये कह देने से मोहब्बत नहीं है कि हमें हुसैन से मोहब्बत है, जब तक हुसैन का मातम नहीं करेंगे मोहब्बत नहीं होगी, जब तक हुसैन का मातम नहीं करेंगे मोहब्बत नहीं होगी। अली ने कहा सुनो, दुनिया में कोई भी काम, इस्लाम में कोई भी काम, आखिरी जुमला पढ़ाएगा, इस्लाम में कोई भी काम बगैर नियत के नहीं है। नमाज पढ़ी नियत की, नमाज पढ़ता हूँ 2 रकअत ज़ोहर की, 2 रकअत फजर की, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अभी तक जो हाथ दुनिया में मुलव्वस थे, थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे बहुत बेदारों को सुनना है, अब तक जो हाथ दुनिया में मुलव्वस थे वो हाथ अब इबादत के लिए उठ गए हैं, अब नियत हो गई है, अब अल्लाह की इबादत हो गई है, अब दुनिया का कोई और काम नहीं हो सकता। हाँ अगर रसूल कह दे कि अपनी नमाज को तोड़ दो तो सिर्फ रसूल के कहने पर नमाज तोड़ी जा सकती है, उसके अलावा नमाज नहीं। अब आपने वुजू किया, वुजू की भी नियत है, बगैर नियत के वुजू नहीं है। आपने वुजू किया, वुजू करने से पहले ये हाथ, ये पैर, ये चेहरा आपका कहीं और मुलव्वस था, आप कोई और काम कर रहे थे, मगर आप जब नियत कर दी तो आप पे वाजिब हो गया कि आप नमाज पढ़ें। रोजा नियत की, जैसी नियत की रोजा रखता हूँ कल का, तो बतन इल्लल्लाह। अब जब तक कि आपका अफ्तार का वक्त ना आएगा आप रोजा नहीं खोल सकते, टूट जाएगी। अभी भी नहीं समझे, नियत टूट जाएगी। अली की नियत आपके ज़हनों में है, मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूँ, अली की नियत आपके ज़हनों में है। जिहाद के लिए क्या नियत की थी आपके ज़हनों, आप चलिए याद दिला देता हूँ। अली ने कहा या रसूलल्लाह, पुष्ट रसूल की जानिब है, कहा या रसूलल्लाह कब तक जंग करूं? रसूल ने कहा कि जब तक तो अली ने जवाब क्या दिया, क्योंकि मैं जिहाद की नियत कर चुका था, अगर मैं पलटता तो जिहाद की नियत टूट जाती। और अली ने कभी भी मैदान से मुंह नहीं फेरा है, अली ने कभी मैदान से मुंह नहीं फेरा है। जुमला आपके हवाले, मैं शराब की नजर कर रहा हूँ, सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। अली ने कहा कोई भी काम आलम इस्लाम में नियत के बगैर नहीं है। नमाज पढ़ी नियत की, रोजा रखा नियत की, हज पे गए नियत की, जिहाद पे गए नियत की, खून से दिया नियत की, ज़कात दी नियत की, यहाँ तक के कोई भी काम नियत के बगैर नहीं है। मेरी तरफ देखिए, जैसे अली ने कहा कि अगर मैं रसूल के जनाजे को छोड़ के बैत कर लेता तो जो नियत मैंने दावत शीरा में की थी, मैंने जो नियत मैंने दावत शीरा में की थी वो नियत टूट जाती। दुनिया वालों की क्या नियतें हैं अली की आगे, अली की नियत देखिए। अली ने कहा अगर मैं जनाजे को छोड़कर बैत कर लेता तो वो नियत मेरी टूट जाती। यानी अली की नियत ऐसी है जो आपके हवाले, खुदा जुमले को जाया मत कीजिएगा। अली की नियत ये है, मेरी नियत ये कि मैं सारी इतनी मजलिस पढ़ूंगा, आपकी नियत ये क्या विशाल इतनी मजलिस सुनेंगे, आपकी नियत ये क्या विशाल मौला को ये करेंगे, आपकी नियत ये आप विशाल करबला जाएंगे। जो भी आपकी नियत है, दुनिया वालों की नियत का अली की नियत से क्या मुकाबला। अली ने अपनी एक नियत से इस्लाम बचा लिया, और कैसे बचाया आपके हवाले कर रहा हूँ। अली की नियत कि मैं रसूल की मदद करूंगा, और रसूल की नियत के लिए अली ने अपनी खिलाफत को जाने दिया। यानी इससे पता ये चला कि अली की नियत कि मैं रसूल की मदद करूंगा, अली ने अपनी नियत पर से 3 खिलाफतों को सत्य कर दिया। अली ने अपनी नियत पर से 3 खिलाफतों को सत्य कर दिया। खलीफा तुम बनते रहो, मौला तो मैं ही रहूंगा। खलीफा तुम बनते रहो, मौला तो मैं ही रहूंगा, इमाम तो मैं ही रहूंगा। इसी तरह हुसैन भी इमाम, किताब का नाम है अवान के सवाल, इमाम के जवाब। और ये रिवायत अगर शब आशूर ना पढ़ी जाए हक अदा नहीं होता, फदाइल की रिवायत है, अगर ना पढ़ी जाए हक अदा नहीं होता। हुसैन की कुर्बानी का सवाल हुआ, मौला हुसैन ने तो अल्लाह पर सब दे दिया, फदाइल में सुनना है आपने, हुसैन ने तो अल्लाह पर सब दे दिया, अल्लाह ने क्या दिया? हाली जवाब एहसान एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हुसैन को अल्लाह ने क्या दिया? अब वाकया सुनिए, आखिरी जुमला। एक बादशाह चला सैर करने, शिकार करने, अपने सवालियों से भटक दिया,
ایک خیمے پہ آ کے رکا، وہاں ایک 90 سال کی بوڑھی عورت، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اور اس 90 سال کی بوڑھی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بکری کے۔ اس کی کہا مجھے پیاس لگی ہے، اس کی کل کائنات کیا ہے؟ بکری۔ اس کا دودھ نکالا، پلا دیا، کب پی لو، کب بھوک بھی لگی ہے، ایک ہی چیز ہے اس کے پاس کل کائنات، بکری صبح کی کھا لو۔ اپنے گھر پہنچ گیا بادشاہ، رات بھر نیند آئی، کہا اس عورت نے اپنی کل کائنات مجھے دے دی، میں اس کے بدلے میں کیا دوں؟ سارے وزیروں کو بلایا، آؤ جلدی آؤ بتاؤ۔ کسی نے کہا آپ اس کو اس کی بکری واپس کر دیں، کسی نے کہا آپ اس کو فلاں چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں، وہ چیز دے دیں، آپ اس کو بہت ساری بکریاں دے دیں۔ ایک وزیر نے کہا میں بتاؤں بادشاہ کیا کروں؟ کہا بتاؤ؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی کوئی کائنات کیا تھی؟ کہا اس کی بکری۔ کہا آپ کی کوئی کائنات کیا ہے؟ کہا میری سلطنت۔ ابھی بھی اتنی آسانی سے سن رہے ہیں، کہا میری سلطنت۔ کہا اس نے اپنی کوئی کائنات آپ کو دے دی، آپ اپنی کوئی کائنات اپنی سلطنت اس کو دے دے۔ بادشاہ نے کہا بڑا خوب فیصلہ سنایا ہے۔ امام نے کہا حسین ابن رو جا کے میرے شیعوں سے کہہ دو کہ حسین کی کوئی کائنات حسین کے بچے تھے، حسین نے اپنی کوئی کائنات اللہ کو دے دی، اللہ کی کوئی کائنات اللہ کی سلطنت تھی، اللہ نے حسین کو دے دی۔ حسین کے پاس ہے، میرے ذہن میں انیس کا بند آ گیا، جب تک نہ پڑھا جائے آشنا مکمل نہیں ہوگا۔ علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی، انیس کہہ رہے میرے یاد نہیں ہے، جو یاد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انیس کیا کہہ رہے ہیں؟ انیس کہہ رہے ہیں کس جنگ علی حسین کا رجز ہے، حسین اپنا رجز پڑھ رہے اور خود بتا رہے کون علی۔ لطف جب آتا ہے جب معصوم معصوم کو فضائل سنائے، لطف جب آتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ یہ انیس نے کہا کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے، حسین بتا رہے ہیں علی کی شان، کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے، کس مرحلہ سیف کو سر کر کے نہ آئے، کس فوج کی سب زیر و زبر کر کے نہ آئے، تھی کون سی گوش تھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے، تھا کون جو ایمان تہے شمشان نہ لایا، اس شخص کا سر لائے جو اس نام نہ لایا۔ آخری سے اس سر کا سر لائے، اس شخص کا سر لائے جو اسلام نہ لایا۔ ایک بت ہے لات، ایک بت ہے لات اور ایک ہے لات مارنا، ایک بت ہے لات اور ایک بت ہے اور ایک چیز ہے لات مارنا۔ کیا کہنا ہے اس کا؟ وہ صرف میر علی سے کر سکتے ہیں۔ حسین کے وجہ پہ اسنام نہ کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، لات لات آپ کے ذہن میں اسنام کچھ کم تھے نا کفار تھے تھوڑے، ارے طاقت تھی کہ ایسا کو کوئی لات سے توڑے۔ کیا حسین نے بتایا ہے؟ طاقت تھی کہ ایسا کو کوئی لات سے توڑے، بدکیشوں نے سجدے بھی کیے ہاتھ بھی جوڑے، بدکیشوں نے سجدے بھی کیے ہاتھ سے ہاتھ بھی جوڑے، بے توڑے وہ بت حیدر صفدر میں نہ چھوڑے، بے توڑے وہ بت حیدر صفدر میں نہ چھوڑے، کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، نکلے آزادے کے اسد اللہ حرم سے۔ آخری میرے ذہن میں لگا گیا اشرا ختم ہو گیا۔ اگر علی ذوالفقار نہ نکالتے تو اسلام نہ ہوتا، اسلام ہم تک نہ پہنچتا اگر علی کی ذوالفقار نہ ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نانا وہ کے جن کے قدم عرش کے سرتاج، قوسین مکاں ختم رسول صاحب معراج، ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے محتاج، ماں ایسی بے دیکھیے کہ بے ذرا نہ ہو، ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے محتاج، ارے باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج، باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج، ارے لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے، لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے، بت گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ۔
گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے. حسین نے اللہ پر سب قربان کر دیا. اللہ نے اپنی پوری سلطنت حسین کو دے دی, پوری بادشاہت حسین کے پاس ہے. جب جانے لگے 28 شعبت کو تو زینب کو فاطمہ کی وصیت یاد آئی. شب عاشور آ گئی, آپ کے گربان چاک ہیں. آج کے دن کو برا نہ مانے اگر میں نے کسی کو سلام کا جواب نہ دیا تو. ہماری تہذیب یہ ہے کہ آج کے دن سلام نہیں کیا جاتا ہے, آج کے دن گلے نہیں ملا جاتا ہے. اگر گلے ملنا ہی ہے تو صرف حسین کا پیشہ لینا ہے. آپ کی آج آوازیں بلند ہو جانی چاہیے. اطمینان سے مسائل سنیے. مجھ سے فرمائش کی ہے کہ پورے جناب جعفر جن کے مسائل پڑھنے ہیں. کہتے ہیں جب حسین جانے لگے تو حسین دھوپ میں کھڑے ہوئے اپنا پسینہ صاف کر رہے تھے. زینب کو وصیت یاد آئی. مجھے یہ جملہ اتنا غضب کا لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ جملہ پڑھتے رہو اور ماتم کرتے رہو. اور وہ جملہ یہ ہے کہ زینب میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا. زینب میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے ہیں. زینب میں نے کبھی حسین کو پیاسا نہیں رکھا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. کہتے ہیں کہ جب حسین جانے لگے تو زینب نے حسین کو اپنے قریب بلایا, حسین کے گلے کا بیسا لینا شروع کیا. پکار کے کہا زینب سے بولا. حسین نے زینب تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا بھیا میں نے ماں سے سنا تھا کہ زینب حسین کو 13 ضربوں سے کاٹا جائے. اتنے میں زینب سے پکار کے حسین نے کہا شہزادی زینب ذرا میرے قریب آؤ. زینب کے شانوں کا بوسہ لینا شروع کیا. کہا بھیا یہ آپ نے بوسہ کیوں لیا ہے؟ کہا زینب بابا اکثر کہا کرتے تھے زینب تمہاری چادر چھینی جائے گی, زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. حسین جب جانے لگے تو کہتے ہیں جیسے ہی اپنی زنجنا پہ سوار ہوئے پکار کے کہا زنجنا میں جانتا ہوں کہ تو تھک گیا ہے مگر یہ تیری آخری زحمت ہے. مگر زنجنا نے چلنے سے انکار کیا. اب جو دیکھا تو 4 سالہ بچے زنجنا کے سنوں سے لپٹے تھے. پکار کے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. کہا بابا مجھے مقتل کا راستہ معلوم ہے, اگر آپ رات میں نہ آئے تو میں مقتل کی طرف چلے آؤں گا. میر انیس نے اس کو کہا نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل ہے. یہ وہاں کا میدان پڑھنے کا, یہ وہاں کا حسین پڑھنے کا. آپ کی آوازیں اسی کرنی چاہیے. آج آپ کو فاطمہ زہرا کو پیشہ دینا ہے. جیسے فاطمہ نے چکیاں پیس حسین کو پالا, وہ حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے. حسین نے جیسے ہی بلند آواز کے ساتھ کہا حال میں ناصر, کہتے ہیں سارے ملائکہ آ گئے, سب لوگ آئے. ایک بار جناب جعفر جن کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھیوں نے کہا جعفر جن کے صدقے میں تمہیں یہ تخت و تاج ملا ہے ان کا گھر میدہ آباد گھیرا جا چکا ہے. حسین تنہا مقتل میں ہے. اپنے تاج کو پھینکا جیسے ہی ہے. ابھی اطمینان سے سنیے کم سے کم 15 منٹ مسائل میں. کہتے ہیں جیسے ہی جناب جعفر جن گئے, جناب جعفر کہتے ہیں میری عادت یہ تھی کہ میں جب بھی نکلتا تھا میں علی کو سلام کرتا ہوا جاتا تھا. میں علی کی قبر پہ آیا, میں نے 3 بار علی کو سلام کیا مگر جواب نہ آیا. میں سمجھ گیا کہ علی بھی وہی موجود ہو گئے. کہتا ہے جعفر کہ جیسے ہی میں پہنچا اب جو میں نے دیکھا تو کربلا کا منظر کچھ اور تھا. تمام ملائکہ کھڑے ہوئے تھے, آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کھڑے ہوئے تھے. حسین کے ایک پہلو میں رسول اللہ کھڑے تھے, جعفر کھڑے تھے, حمزہ کھڑے تھے. اور جانتے ہیں کیا کہا؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جہاں سے حسین کا لہو ٹپکتا. رسول اس کو چنوں میں لے کر شیشے میں ڈال دیتے. اب جناب جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن مصطفیٰ حسین کا سیدھے ہاتھ کا بازو دبا رہا ہے. میں نے آ کے سلام کیا السلام علیکہ یا باپ اللہ حسین. جملہ سنیں گے امام نے کہا جعفر جانتا ہوں کہ آنکھوں کی بینائی علی اکبر میں ہے
मगर सामन में भी मैं अपने दोस्तों को चाहता हूँ। जाफर मेरे करीब आ जाओ। क्या माना कि आपके हाथ में दर्द हो क्या ज्यादा? क्या जाफर तुम नहीं जानते ये तीर नहीं है, ये मेरे मन में 6 माह के अंदर ये मेरे मन में 6 माह की निशानी है। जैसे ये जुमला कहा जाफर ने कहा मौला शायद आपको प्यास लगी है, आपके लब आपस में चिपक रहे हैं। कहा जाफर 3 दिन से पानी नहीं पिया है। कहा मौला आप मुझे हुक्म करे कि मैं अभी पानी लेकर आऊं। जाफर का हाथ थामा और एक नन्ही सी कब्र को लेकर आया। कहा जाफर अभी कुछ देर पहले एक पानी पिलाने गया था, मगर उसके अंदर एक शब्द सुना। उसके बाद एक खजूर की बर्फ की आग में लेकर आए। कहा जाफर इन्हें पहचानते हो? कहा मौला ये तो शबीह रसूलुल्लाह है। कहा तो मेरे पास है, ये मुमकिन नहीं है कि हुसैन पानी पी ले। जैसे ये कहा मौला बद्र के मैदान में भी मलाइका और फरिश्तों ने मदद की थी। आप मुझे हुक्म करे कि मैं इन सबको खत्म करूं। इमाम ने कहा जाफर तुम इन्हें देख सकते हो, ये तुम्हें नहीं देख सकते। और अगर अच्छा तुम हुसैन की शजात देखना चाहते हो, ये कह के हुसैन ने जुल्फ़िकार को खींचा। हर बार के कहते जाते थे मेरे जान भाई मेरी लड़ाई देखो, मेरे कासिम का लाशा मेरी लड़ाई देखो, मेरे नन्हे असगर थे मेरी लड़ाई देखो। अब हुमला कहता है और हुसैन ने तो कहा बेटा जाफर अब तुम भी जाओ। मलाइका से कहा जिब्रील से कहा जिब्रील सबसे कहो कि वापस जाओ। कहा जाफर तुम भी वापस जा। कहा मौला यही मेरा आखिरी मकाम है, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? कहा जाफर अब इस करबला में कोई नहीं होगा, या तो हुसैन होगा या हुसैन की माँ होगा, या तो हुसैन होगा या हुसैन की माँ होगी। कहा जाफर 2 बातें सुनता हुआ था और वो बात ये है कि अब जब तक रहो मेरी अदादारी करना, मेरा मातम करना, और जब भी ठंडा पानी पियो हुसैन की प्यास को याद करना। कैसे है जाफर ने कहा अब फातिमा का नाम आ गया था, अगर मैं रुक जाता तो बहुत बेअदबी हो जाती। जाफर वापस चले। अब कहता है हुमरा कि जब हुसैन कभी मैमने को, कभी मैसरे को, कभी करबे लश्कर को तहस नहस कर चुके थे, तो हमारे साथ ने मुझे कहा कि अगर हुसैन को शेर न किया तो हुसैन फतह पा जाएंगे। हुसैन का हाथ अपनी पेशानी पे था। हुमरा कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा। हुमरा ने कहा हुसैन के हाथों को छूता हुआ हुसैन की पेशानी में उमर साद कहता है अब हुसैन संभालने वाले थे। मैंने सबसे कहा जो थैलियों में पत्थर बांध कर आए हो, पत्थरों की बारिश हो। हुसैन तरह थे तीर चलाए गए, मैसे चलाए गए, भाले मारे गए। अरे ये तेगों में सबसे कहा बिछा दो, आज मेरी ताजपोशी ना होगी। मेरी माँ ने आके कहा जाफर आज तो तेरी ताजपोशी का दिन था। हम मर्दर गिरामी जिनके सदके में मुझे ताज मिला है उनका घर ना गया है, ज़हरा का घर का राज हो गया, फातिमा ज़हरा का बाग लग गया। क्या जाफर तू मेरे हुसैन को तन्हा छोड़ के आ गया, मैं झूठ नहीं बख्शूंगी। अब जाफर कहते हैं कि मैं जैसे वापस गया तो करबला का मंजर कुछ और था। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ये देखा कि चारों तरफ से
گرے. 13 قاتلوں کو واپس کیا. شیر آیا, حسین نے کہا بدبخت اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹا. کہا کیوں؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا حسین تمہارا قاتل نجس العین جانور جیسا ہوگا. مقام امام زمانہ اور قتل کا تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اب آپ کی آوازیں بلند ہو جائے. کہتا ہے میں نے مقام امام زمانہ سے حسین